Good morning, students. Welcome to Learning with Creative Mama. And today I am going to explain you a chapter of class 8 CBSE board, and the book's name is Social and Political Life. It's my first video, and I hope you people like it, and it will be helpful for your learning. The first chapter, the chapter's name is The Indian Constitution. Then first of all we have to learn what is constitution. सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. According to the rules of football, the ball touches the arms of any player, then is it this is considered as a foul. What does it mean? Like, we are suppose we are playing a game. Without rules we can't play any game. Like, we are playing football, and in football we are playing everything with hands. It doesn't seem like football, na? Exactly. Like that only, in each and every game, in each and every aspect of life, we have some rules, and we need some rules to follow that particular instructions, or to play that particular game. जैसे फुटबॉल खेलने के लिए हमें पैरों की ज़रूरत होती है, उसको हमेशा पैरों से ही खेलना होता है, उसको हाथों से हम नहीं खेल सकते हैं. इसीलिए हर गेम को खेलने के लिए एक रूल्स होते हैं. वैसे ही एक सिविलाइज सोसाइटी में रहने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है. लाइक, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस. What does it mean? The definition is written over here. A written document in which we find such rules is called a constitution. Which rules? Fundamental duties, fundamental, like fundamental. These rules are fundamental through consensus, and the modern countries, their consensus is usually available in written form. We have look at the Indian Constitution in class 6th and 7th in our social and political textbooks. Have you ever wondered why we need a constitution, and being curious about how the constitution got written or who wrote it? In this chapter, we will discuss both the issues and also look at the key features of constitution. Each of these features is crucial to the working of democracy in India, and some of these will be focus of different chapters in this book. Now, we are going to start the chapter. Why does a country needed a constitution? Why does a country needed a constitution? एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है? टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव कॉन्स्टिट्यूशंस. बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, सब में अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं. मतलब एक सेट ऑफ रूल होता है जिसके थ्रू लोग अपनी कंट्री को, अपनी सोसाइटी में रहते हैं, अपनी कंट्री को चलाते हैं. While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. ज़रूरी नहीं है कि सारी वो कंट्रीज जो डेमोक्रेटिक हो, जो लोकतांत्रिक हो, उसी में कॉन्स्टिट्यूशन हो. कई कंट्रीज ऐसी भी होती हैं जो मोनार्कियल होती है. जैसे मोनार्की सिस्टम नेपाल में चलता था, लेकिन तब भी वहाँ पे उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था. तो वैसे ही first it lays are certain ideals that form the basic kind of country that we as citizens aspire to live in. Put another way, a constitution tell us what the fundamental nature of our society is. A country is usually made up of different communities of people and share their beliefs, but may not necessarily agree on all issues. A country serves as a set of rules and principles that all people in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. एक कंट्री में बहुत सारे ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके थ्रू, जिन रूल्स को फॉलो करके वो कंट्री को चलाया जाता है, और उस कंट्री के
फंडामेंटल्स को फॉलो किया जाता है. दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडल्स दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड. Now, let us try and understand what we mean by this through two contrasting situation in the recent history of Nepal. अब हम दो एग्जाम्पल से ये समझेंगे कि दो अलग अलग सिचुएशंस को देखते हुए, दो अलग अलग कंट्रीज की दो अलग अलग सिचुएशंस को देखते हुए समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है. Nepal was a monarchy. The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflect the fact that the final authority rested with the king. नेपाल में एक मोनार्कियल सिस्टम चलता था जिसके 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 हिसाब से जो भी रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो, वो वाले रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो होते थे जो किंग बनाते थे. क्योंकि मोनार्कियल सिस्टम में किंग, जो राजा होता है, वही अपनी प्रजा के बारे में सोचता है, वही अपनी प्रजा के बारे में डिसीजन ले सकता है. A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the king. और एक पीपल्स मूवमेंट के थ्रू नेपाल में 2006 में ये एक पीपल्स मूवमेंट के थ्रू इस पूरे मोनार्कियल सिस्टम को स्टॉप करके एक डेमोक्रेसी वहाँ पे आई 2006 में, जिसके बाद से ये जो मोनार्कियल सिस्टम था वो वहाँ पे ख़त्म हो गया और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की शुरुआत हुई. नाउ द पीपल. तो जैसे ही एक डेमोक्रेटिक नेपाल एक डेमोक्रेसी बन गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश नेपाल एज ए डेमोक्रेसी, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की कोशिश की गई और किया गया, क्योंकि वो जो रूल्स और रेगुलेशंस, जो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे बना हुआ था वो एक मोनार्कियल सिस्टम के अकॉर्डिंग बना हुआ था. जो रूल्स और रेगुलेशंस थे वो किंग के अकॉर्डिंग चल रहे थे, ना कि वहाँ की जनता के, वहाँ की पब्लिक के अकॉर्डिंग. इसीलिए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो सारे लोग अपनी स्वेच्छा से उसको यूज कर सके या उसको फॉलो कर सके. एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल इन विच a change in the constitutive rules will change the game altogether. Nepal, by moving from a monarchy to a democratic government, needs to change all its constitutive rules in order to usher in a new society. जैसे नेपाल में जो गवर्नमेंट थी वो वहाँ पे मोनार्कियल सिस्टम को ख़त्म करके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब आई, तो वहाँ पे उन रूल्स और रेगुलेशंस को चेंज करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेटिक रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए. दिस इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल आर इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री. इसीलिए नेपाल के लोगों ने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की मांग की थी कि एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जाए कंट्री के लिए, जो सब लोगों के लिए हेल्पफुल हो. The caption alongside elaborates Nepal's struggle for democracy, जिसमें कैप्शन था कि वो कैप्शन में नेपाल की डेमोक्रेसी को शो कर सके. द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, जो दूसरा पर्पज है कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाने का, वो डिफाइन करना नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम. हमारी कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको दिखाना कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा एक एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर. जैसे कि पहले वाली कॉन्स्टिट्यूशन जो नेपाल की थी, जिसमें ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो भी होगा और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल्स होंगे वो उसको फॉलो किंग या उसके मिनिस्टर्स मिलके करेंगे. इन कंट्रीज दैट हैव adopted a democratic form of government or polity, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within the societies. In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise power responsibly or on behalf. However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authorities, and the constitution usually provide safeguards against this misuse of authority can result in gross injustice, or as demonstrated in the classroom situation below. बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं जिसमें कि डेमोक्रेटिक रूल्स को जो लीडर्स हमने चुने होते हैं वो उसको मिसयूज करते हैं,
और ये मिसयूज़ की वजह से हम वो अपनी जो भी अथॉरिटीज़ उनको मिली होती हैं वो उसका मिसयूज़ करते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक क्लासरूम के एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। समझेंगे कि कैसे लीडर्स अपनी अपनी अथॉरिटीज़ का मिसयूज़ करते हैं। Now we are going to start a example to demonstrate that how the leaders are misusing their authorities. Suresh is the class monitor. He is a bully. His classmates are not too fond of him. Mrs. Rao, the class teacher, has to leave the classroom on some urgent work. She asks Suresh to mind the class. Suresh starts picking on Anil. अब सिचुएशन ये है कि एक टीचर है मिसेस राव जो क्लास ले रही है और उसको अर्जेंट किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है किसी अपनी क्लासरूम को छोड़ के। तो उसने मॉनिटर जो मॉनिटर सुरेश है, पहले से जो मॉनिटर है क्लास का सुरेश, वो एक बुली टाइप का मॉनिटर है जो अपनी ही चलाना चाहता है सबके ऊपर। वो एक लीडर तो है लेकिन वो अपनी अथॉरिटीज़ का मिसयूज़ करना जानता है। तो उसने उसने क्या किया, मिसेस राव जब क्लास छोड़ के गई और जब वो क्लास में रिटर्न हुई तो उसने तुरंत ही अनिल के ऊपर अपनी फिंगर पॉइंट आउट करते हुए कहा कि टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव। लेकिन अनिल ने कुछ नहीं किया था। बट व्हाट अनिल ने उससे पूछा कि मैंने क्या किया है। तो उसने बोला कि मैम वाइल यू वर अवे अनिल केप्ट टॉकिंग लाउडली एंड डिस्टर्बिंग द क्लास, ही वुड नॉट लिसनिंग टू मी। लेकिन ऐसा अनिल ने कुछ नहीं किया था। उसने बस मैम से कंप्लेन कर दिया कि वो अनिल शोर मचा रहा था और आप क्लास में नहीं थी तो वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था। अनिल, यू वुड हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड राइट आई विल नॉट डिसोबे द क्लास मॉनिटर 100 टाइम्स। अब टीचर ने उसको पनिशमेंट दे दिया कि तुम 100 बार ये लिखोगे कि मैं अब क्लास टीचर और मॉनिटर को डिसोबे नहीं करूँगा, उसकी बात हमेशा मानूंगा। इसको तुम 100 टाइम्स क्लास के बाद लिखोगे। बट मैम डिड नॉट डू मैम आई डिड नॉट डू एनीथिंग। अनिल बार बार कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन मैम ने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया। अब आप इस सिचुएशन से समझिए। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आर पॉलिटिकल लीडर्स। इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन about which you will read more later in this chapter। अब इस सिचुएशन से आपको क्या समझ में आया कि सुरेश ने अपनी अथॉरिटीज़ का गलत यूज़ किया है। उसने अपनी अथॉरिटीज़ से ये दिखाने की कोशिश की है कि मैं कितना बड़ा लीडर हूँ और तुम मेरी बात के आगे कुछ नहीं कर सकते हो। अनिल मेरी बात के आगे कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन बहुत गलत होती है। अगर इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़े, इसी के लिए फंडामेंटल रूल्स बनाए जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स बनाए जाते हैं, ताकि हम अपने अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सके कि हमने ऐसा नहीं किया है और हम इस तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए आपने क्लास 7th में भी पढ़ा होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में, जो एक दलित थे और उनके साथ गलत किया गया था। एक्सपीरियंस, डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑफ on the Dalit writer Om Prakash Valmiki experience in school from your class 7 book? In that chapter we talked about the discrimination Om Prakash faced because of he was Dalit। सिर्फ वो दलित था इसलिए उसको कितनी डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ा था, ये आप लोगों ने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा होगा। यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees the right to equality to all persons and says that no citizen can be discriminated against on grounds of religion, race, caste, gender and place of birth। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को थॉरली पढ़ा है और पढ़ेंगे आगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी एक फंडामेंटल राइट है, जिसके थ्रू हम किसी के साथ कोई भेदभाव, कोई धर्म के नाम पे, रेस मतलब रंग के नाम पे, कोई काला है गोरा है उसके नाम पे, किसी जाति के नाम पे, किसी लिंग के नाम पे, किसी उसके जन्म स्थान के नाम पे किसी के साथ हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। द राइट टू इक्वालिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इक्वालिटी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल राइट है जो हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से मिला हुआ है। Now let us try and understand the ways in which the above points get translated into certain ideals and rules by studying some key features of Indian Constitution। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट टॉपिक कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है
और वो एक कंट्री के लिए क्यों बनाया जाता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट वीडियो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और उसके बाद हम आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताएंगे. आज की वीडियो में बस इतना ही. आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए. इट इज़ माय वेरी फर्स्ट वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.